शुरू करें। Good afternoon to everyone. After a very wonderful session of Sri Joglekar Sahab, let us switch our gears and we will be starting with our discussion on climate change. कितने आ गए? 16। स्क्रीन शेयर करना। हाँ शेयर कर दो, सामने रहे तो ठीक है। Okay, sure. Yes. So friends, now for about an hour or so, I'll be talking to you on climate change. Hope I am audible at all the places. What climate change means? These days we often hear that climate is fast changing. In fact, it is not the climate which is fast changing, it is the weather which is fast changing. So we should understand the difference between the term weather and climate. Weather is a very small time frame in which we observe the different systems which make a weather. But when we talk about the climate, then climate is a very long time changes which we observe in nature. That we call it as a climate change. Next, so climate change is posing a grave problem. So let us understand why we want to talk about the subject called climate change and how this climate change is impacting our life. Next page. This climate change is posing a big economic challenge and humanitarian challenge the world has ever faced. So the global problem, it's a pan world problem. So naturally, the solution we have to find out at global level. So global problem requires a global solution, and what we can contribute, I'll be discussing it in next 30-35 minutes. This human activity has contributed, we all know that it has contributed in increasing the concentration of carbon dioxide in the atmosphere, which has led to increase in average global temperature. Let me try to explain what it means. See, this is called anthropogenic factors. Anthropogenic factors means the factors in which human element is involved in spoiling his own climate. We burn lots of fossil fuel for our use. हमारे जो कोयले के भंडार हैं, इनका हमने बहुत ज़्यादा दोहन किया, कोयले को जलाया, चाहे बिजली बनाने के लिए, चाहे स्टीम इंजन को चलाने के लिए, चाहे कल कारखानों को चलाने के लिए. We have burnt lot of coal. Coal is a fossil fuel. And last time also probably I explained that coal led our economy is in fact ruining our environment. ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहा है. चूंकि ये फॉसिल फ्यूल है तो इसमें कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें फास्फोरस है, इसमें सल्फर है, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो जलते हैं, और जब ये जलेंगे तो ऊर्जा पैदा करेंगे, साथ ही साथ ये प्रदूषण भार भी हमारे वायुमंडल पे डालेंगे. तो कार्बन अगर जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर जलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, फास्फोरस जलेगा तो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनेगा. ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं which burns in oxygen in the presence of oxygen and it produces some gases. Moreover, सूरज की गर्मी से हमारी जो समुद्र है, जो हमारे जितने वाटर सोर्सेस हैं, ये सब भी, इनमें भी वाष्पन होता है, इवेपोरेशन होता है. तो वाटर वेपर इज ऑल्सो ए ग्रीन हाउस गैस. तो जब हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली होते क्या है? संभवतः पिछली बार मैंने अपने डिस्कशन में आपको बताया था कि जब सूरज की किरणें धरती को गर्म करती हैं, धरती गर्म होने के बाद इसकी गर्मी वापस वायुमंडल में विकिरित हो जाती है.
लेकिन यदि धरती के ऊपर में कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर वेपर का, मीथेन गैस का, नाइट्रस ऑक्साइड का अगर एक एनवलप हो, यदि उसके ऊपर एक कवर चढ़ा हो कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये गर्मी वापस वायुमंडल में जा नहीं पाती है और वहीं के वहीं रह जाती है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा जो पृथ्वी हमारा है ये गर्म होने लगता है। और जब पृथ्वी हमारी गर्म होगी तो उसके बहुत सारे खामियाजे हमको भुगतने पड़ते हैं। जैसे आप देखिए, आज हम कहते हैं कि साहब पोलर आइस जो है मेल्ट हो रहा है, हम कहते हैं ध्रुवों में जो बर्फ जमी थी वो पिघलती जा रही है। हम कह रहे हैं जब ये सारे के सारे ग्लेशियर्स हैं, हिमनद हैं, ये जो हिमनद होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, ये इन्हीं से पानी हमारे समुद्रों में आता है, नदियों के रास्ते। तो जब समुद्र में इतना बड़ी मात्रा में पानी आएगा तो समुद्र का तल ऊंचा होता है, सी लेवल राइज हो रहा है। जब सी लेवल राइज हो रहा है तो नेचुरली उसका परिणाम ये हो रहा है कि बहुत सारे हमारे जो टापू हैं, जो द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप, वो सब डुबान की स्थिति में आ रहे हैं। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि पिछले 100 साल में 1.5 मीटर हमारा जो वो है समुद्र तल ऊंचा हो चुका है। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, जिसमें उद्योगों को चलाने के लिए हमने फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया, और ये फॉसिल फ्यूल के कारण हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा छोड़ा। यहां तक छोड़ा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले, औद्योगिक क्रांति के पहले, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण था, कंसंट्रेशन था, दैट वाज 200 पार्ट्स पर मिलियन, जो आज बढ़ करके 407 पार्ट्स पर मिलियन हो गया, यानी दुगने से ज्यादा हो गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, मीथेन गैस बढ़ गया, और जब वाटर वेपर्स बढ़ने लगे, तमाम चीजें जब होने लगी, तो निश्चित रूप से हमारे वायुमंडल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रदूषण का भार आने लगा। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में ऐसी कौन सी मशीन बनी है जो इस कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण को वापस 407 से 200 पार्ट्स पर मिलियन में ला सके? तो दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है। इसकी एक ही उपाय है, वो ये है कि यदि हमारे जो जंगल हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारी वनस्पति है, आपको मालूम है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है प्रकाश किरणों के उपस्थिति में, जमीन से पानी सोखती है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और फोटोसिंथेसिस से ये कार्बोहाइड्रेट बना के, स्टार्च बना के अपने में संचित करके रखती है। यानी ये जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेसिस से ही हमारे पौधे जो हैं अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उनका संचयन अपने में करते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बेहतरीन उपयोग यदि कुछ कोई कर सकता है तो केवल हमारा जो वानस्पतिक आवरण है, जो हमारा वेजिटल कवर है, वही कर सकता है। तो ऐसे समय में जब हम पलट के देखते हैं तो हमें लगता है कि पिछले सैकड़ों सालों में हमने बहुत बड़ा हिस्सा हमारे जंगलों का खो दिया है। जंगल कट गए हैं। जंगल कटने के कई कारण रहे हैं। हमारी आबादी बढ़ी है, तो इतनी बड़ी बसाहट के लिए हमको जंगल ही काटना पड़ा रहा है। इसके बाद हमारे उद्योगों के लिए जंगल कटे, हमारे कल कारखाने लगने थे उनके लिए जंगल कटे, यानी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जिसको हम आज के शब्दों में हम कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। तो ये विकास की हमने कीमत चुकाई है, और ये कीमत किस रूप में चुकाई है? हमारे जंगलों के रूप में। और शायद पिछली दफा मैंने आपसे कहा था कि हमारे जंगल जो हैं ये हमारे जल के संरक्षण के सबसे बड़े स्रोत हैं। यानी अगर आप जंगल किसी एरिया का काट देंगे तो उसके नीचे बहने वाले जितने नदी नाले हैं वो आपको सूखे ही मिलेंगे, क्योंकि जंगल एक स्पॉन्ज जैसा काम करता है। बारिश के पानी को वो अवशोषित करता है और धीरे 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 साल भर आपकी नदियां सदा नीरा बनी रहती हैं, हमेशा उनमें पेरेनियल हो जाती हैं। लेकिन यदि जंगल कट गया तो पानी का अवशोषण करने की क्षमता हमारे बाकी किसी में नहीं है, और जंगल का आवरण ऊपर रहेगा तो बारिश की बूंदें पेड़ों पे पहले गिरेंगी, उसके बाद धरती पे आएंगी। यदि पेड़ ऊपर से हट गए, यदि जंगल कट गया, तो ये बारिश की बूंदें सीधे हमारे मिट्टी पे पड़ती हैं और मिट्टी का क्षरण होने लगता है, जिसको आप भूक्षरण कहते हैं या सॉइल इरोजन कहते हैं। तो एकदम एक शीट इरोजन होता है, ऊपर की सतह पूरी निकल जाती है, और आपको मालूम है मिट्टी की सबसे ऊपरी सतह जो है वो सबसे उपजाऊ होती है, तो फर्टाइल टॉप सॉइल बोलते हैं। तो फर्टाइल टॉप सॉइल गेट्स इरोडेड बाय द स्प्लैश ऑफ दैट रेन वाटर।
जो रेन ड्रॉप्स हैं उसके स्प्लैश से मिट्टी अपनी जगह से खिसक जाती है, और ये मिट्टी खिसक जाती है तो आपकी उपजाऊ जो जिसमें जो वनस्पतिक आवरण के लिए आधार है वो आधार ही खिसक जाता है। इसीलिए आज आप देखते हैं कि बहुत सारी हमारी पहाड़ियां नंगी हैं, यानी उसके ऊपर जो वानस्पतिक आवरण था वो चला गया और केवल चट्टानें आपको नजर आती हैं। इसके ऊपर एक जमाने में उसके ऊपर मिट्टी थी, मिट्टी की सतह थी, मिट्टी की गहराई थी, और उन गहरी मिट्टियों में हमारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। तो ये हमको जानना पड़ेगा कि अगर ये ग्लोबल वार्मिंग या पृथ्वी का गर्म होना या आप ये कह लीजिए क्लाइमेट चेंज जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब होने के लिए बहुत हद तक इंसान ही उसके लिए दोषी रहा है। तो क्लाइमेट चेंज उसको एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर यानी मानव जनित कारण। दूसरा एक होता है जियोजेनिक रीजन, जो प्रकृति के कारण होता है। जैसे कई जगह पे कोयले अपने आप आग पकड़ लेते हैं, वो जलते हैं, उनके कारण कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे आपका नियंत्रण नहीं है, और उसमें से भी मीथेन निकल रही है। अगर आप धान की फसल ले रहे हैं तो धान की जड़ों के पास से सड़न होती है, और से बुलबुले बुलबुले से आपको पानी के ऊपर आप बुलबुले देखते होंगे, जहां पर धान की खेती या दीगर खेती होती है जो पानी लबालब खेतों में होती है, तो आपने बुलबुले निकलते देखे होंगे। ये बुलबुले मीथेन गैस के होते हैं। या हमारे जो मवेशी चरते हैं उनके पेट में से जो चारा जो पाचन क्रिया होती है उसमें से जो गोबर निकलता है उसके साथ मीथेन गैस का भी डिस्चार्ज होता रहता है। ये सारे के सारे हैं जिसके ऊपर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। ये जियोजेनिक रीजन है या अदर रीजंस है, बट वी कैन नॉट ब्लेम द ह्यूमन एलिमेंट इन दैट। तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट लीजिएगा। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये नेचुरल क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी के अलावा हो रही है। इसके अलावा जो क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी हो रही है वो भी हमारे क्लाइमेट के ऊपर उसका भी अपना असर है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, थोड़ा सा हम पीछे जाएं। सन 2015 को ये माना गया है कि विश्व का सबसे गर्म समय रहा है। इसके पहले 2014 में था, और मैं आपको ये पुराना मेरा स्लाइड है, अभी मैं आपको बताऊंगा 2017 भी बहुत ज्यादा गर्म था, ये 2015 से भी गर्म था। यानी साल दर साल पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, चाहे वो 0.1 डिग्री सेल्सियस हो या 0.2 डिग्री सेल्सियस हो, बट तापमान हमारा निरंतर बढ़ रहा है। सी लेवल्स आर राइजिंग फास्टर देन एट एनी टाइम इन द पास्ट 3000 ईयर्स। पिछले 3000 सालों में समुद्र की सतह इतनी बड़ी नहीं है जितनी ये पिछले 50-60 सालों के अंदर में समुद्र की सतह बढ़ी। मैंने आपको कारण बताया कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने की रफ्तार बढ़ी। और ग्लेशियर्स क्यों तेजी से पिघले? क्योंकि क्लाइमेट में, पूरा एटमॉस्फेयर में गर्मी जो है ज्यादा बढ़ी ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अब आप देखिए, कुछ देश जिसको हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियली बड़े एडवांस कंट्रीज हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इस ग्रीन हाउस गैसेस में, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस को डालने में। अब इस शब्द से आप परिचित हो चुके होंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। ये ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल है वाटर वेपर, यानी समुद्रों के वाष्पन से, समुद्रों के पानी के वाष्पन से, नदी तालाबों के वाष्पन के पानी से जो निकलता है उसको हम वाटर वेपर कहते हैं या भाप कहते हैं। भाप भी एटमॉस्फेयर में जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, मीथेन गैस जा रही है, और नाइट्रस ऑक्साइड जा रहा है। ये तमाम चीजें जो एटमॉस्फेयर में जा रही हैं इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, और ये ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ही पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। चाइना, चीन, आप देखते हैं ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन गया था पिछले सालों में। इसने सबसे ज्यादा 30% हमारे ग्लोबल जो एमिशन है, ग्लोबल जो गैसेस का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में है, उसमें 30% ग्रीन हाउस गैसेस का कंट्रीब्यूशन अकेले एक देश चाइना ने किया है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया था, वर्ल्ड का बना हुआ है, इंडस्ट्री बहुत एडवांस हो गया, लेकिन उन्होंने अपने सारे कोयले जलाने शुरू किए, जिससे कि कल कारखाने चलने लगे। सारा का सारा जितने भी उनके मिनरल रिसोर्सेस थे, ये सारे मिनरल रिसोर्सेस को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लगी, और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज चाइना जो है सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बना है। लेकिन इसकी कीमत इस रूप में वो चुका रहा है
कि वो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा प्रदूषणकारी तत्वों को वायुमंडल में डाल रहा है। इसके बाद अगर बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, आपको मालूम है अमेरिका भी एक बड़ा विकसित देश है। अमेरिका का कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैसेस में 15% है। यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो भी इंडस्ट्रियली एडवांस्ड हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 10% है। यूरोपियन यूनियन में 28 देश हैं, आपको पता है। इन 28 देशों का सम्मिलित रूप से जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस का योगदान है वो 10% है। भारत का 6.5% है। यानी ये सारे देशों को अगर हम जोड़ लें, चाइना, यूएस, यूरोपियन यूनियन और भारत, तो तकरीबन 61% कार्बन डाइऑक्साइड ये इतने देश मिलकर के वायुमंडल में डाल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए जहां भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है, जहां भी हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, जहां क्योंकि हम पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल भी जल रहा है, डीजल भी जल रहा है, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रही हैं, कोयला जल करके हम थर्मल पावर प्लांट्स चला रहे हैं। यानी ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, ये हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा एक एंगल मैं और आपको बताता हूं कि ये जितने भी चिमनियों से निकलने वाले धुएं, कहीं पर हम देखते हैं कि चिमनी से धुआं निकल रहा है, हम उसको मान लेते हैं प्रगति की निशानी। हमें लगता है कि इंडस्ट्रियली हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल में ये धुएं में इतनी सारे तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे नुकसानदायक है। जो धुएं के साथ जो कार्बन के पार्टिकल्स निकलते हैं बाहर, वो साफ धुआं नहीं रहता, उसमें कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं और वो कार्बन के पार्टिकल्स सब कहलाते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको आप एसपीएम कहते हैं। ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के दो साइज होती है, एक 10 माइक्रोन और उससे ज्यादा और एक 2.5 माइक्रोन यानी 2.5 माइक्रोन से के अंदर का। तो ये 10 माइक्रोन से ज्यादा जो होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में आता है, आपने देखा होगा ठंड के दिनों में हम अगर अपने घर में चलते हैं और फर्श अगर हमारी सफेद है तो उसके ऊपर कालिख जमी जाती है। ये कालिख खासतौर से इंडस्ट्रियल टाउनशिप में हमारे जो साथी जो कोरबा से आते होंगे या जो रायपुर के हैं, बिलासपुर के हैं, दुर्ग के हैं, वो बहुत अच्छे से इस बात को महसूस कर सकते हैं कि उनके टेबल पे, उनके कपड़ों में, कपड़े अगर आप सुखाने बाहर डालते हैं तो उसके ऊपर एक कालिख की परत जम जाती है, बहुत बारीक बारीक महीन कण उसमें होते हैं। अब आप समझ के देखिए कि ये सारे के सारे महीन कण वायुमंडल में हैं और इस वायुमंडल में अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप जानते हैं कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो साथ में वो कार्बन पार्टिकल्स को भी आप इनहेल कर रहे हैं, यानी आपके लंग्स के अंदर में जाके ये कार्बन पार्टिकल्स बैठ रहे हैं। आपने तो सोचा कि मैंने व्यायाम कर रहा हूं, सुबह निकल के दौड़ रहा हूं, मैं प्राणायाम कर रहा हूं, सांस खींच रहा हूं, फेंक रहा हूं, लेकिन आप ये नहीं जान रहे हैं कि इसके साथ कितने सारे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर आपके फेफड़ों में आ रहे हैं, लंग्स में आ रहे हैं। और आपको मालूम है लंग्स ही हमारे गैसियस एक्सचेंज का काम करता है, यानी हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, और ये दोनों प्रक्रियाएं हमारे लंग्स के साथ में लगी हुई जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त वाहिकाएं हैं, वहीं पर गैसियस एक्सचेंज होती है। और यदि इसके अंदर पूरी की पूरी कार्बन की तह जम जाए आपके लंग्स में, तो आपके लंग्स ढंग से काम नहीं करेंगे, अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करेंगे। इसीलिए आप महसूस करते हैं कि हम शाम आते आते हमारे बच्चे थके थके दिखते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? उसकी वजह यही है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल में जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, वो बहुत ज्यादा हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। अब तरक्की कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रियली बहुत एडवांस हो रहे हैं, हमारे ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, सकल घरेलू उत्पाद में उसका अपना बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन हमारा जो हेल्थ बजट है, हमारे घर का जो हेल्थ बजट है, वो बिगड़ रहा है क्योंकि हम बार बार बीमार हो रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं और उस पर हम राशि खर्च कर रहे हैं। तो किस किस्म की तरक्की है, इस पर हमको जरा ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण इसमें बिंदु ये भी है कि ये जितने सारे उद्योग हैं, इन उद्योगों से निकलने वाला जो पानी है, अपशिष्ट है, जिसको हम कहते हैं इफ्लुएंट, इंडस्ट्री से जो पानी निकलता है गंदा पानी, उसको इफ्लुएंट कहते हैं। और ये सारे के सारे इफ्लुएंट, जिसमें बहुत सारे किस्म के केमिकल्स हैं, ये सारे के सारे बगैर ट्रीटमेंट के, बगैर उपचारण के, ये हमारे नदी नालों में छोड़ दिए जाते हैं। इससे दिक्कत क्या हो रही है कि हमारे नदी नाले जो हैं वो प्रदूषित हो रहे हैं, और उन नदी नालों के अगर पानी का हम पीने के लिए उपयोग लाएं, नहाने के लिए उपयोग लाएं, या जिस प्रयोजन के लिए हमारे मवेशियों ने उसको पानी पीना शुरू किया,
तो ये सारे के सारे केमिकल्स उनके शरीर के अंदर आ रहे हैं, और आपको मालूम है बहुतेरे केमिकल्स ऐसे होते हैं कि वो शरीर से बाहर नहीं निकलते, वो शरीर में रह जाते हैं और उनकी टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है। उनका जो विषैलापन है वो शरीर में बढ़ता है, जिसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी। क्यूमुलेटिव यानी एक्यूमुलेट होता जा रहा है बॉडी में, लिवर में जमा हो रहा है, किडनी में जमा हो रहा है, मैल फंक्शनिंग हो रही है लिवर की, तो उसकी हिपेटोटॉक्सिसिटी होती है, उसकी रीनल टॉक्सिसिटी होती है, यानी किडनी और लिवर आपके खराब होते जाते हैं। फिर आप देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तरक्की हुई, लोगों को रोजगार मिला, देश का सकल घरेलू उत्पादन बढ़ा, लेकिन किस कीमत पे? हमारे वो इंडस्ट्री से निकलने वाले जो नदी नाले हैं, उन नदी नालों के किनारे में जो रहने वाले लोग हैं, जिनका जीवन उसी नदी नालों के ऊपर आश्रित है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो कभी भी विकास को हमेशा पर्यावरण के दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि यदि पर्यावरणीय क्षति हो रही है, इफ यू आर कॉजिंग डैमेज टू द एनवायरमेंट, then such development cannot be called as a development. So development has to be defined कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यानी ये सतत संपोषणीय विकास हो, लोगों का विकास हो, लोगों के स्वास्थ्य की कीमत पे होने वाले विकास को हम विकास नहीं कह सकते, वो विनाश है। इस बात को हमें समझना होगा। तो विश्व समुदाय ने इन बातों को समझा, इस पर बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त की। चिंता व्यक्त करने के बाद एक क्योटो प्रोटोकॉल, जापान में एक जगह है क्योटो, वहां पर सारे देश सम्मिलित हुए और उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की कि ये जो कार्बन का जो उत्सर्जन है इंडस्ट्री से, कोयला जला के, तमाम तरीके से, इसको कैसे कम किया जाए। तो उन्होंने ये कहा कि ये हमको 1990 में जो हमारा कार्बन का उत्सर्जन था, उस स्थिति में अगर हमको लाना है पूरे विश्व को, तो हमें इसके लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। और खास तौर से जिम्मेदारी उन देशों की है जो औद्योगिक रूप से काफी विकसित देश रहे हैं, क्योंकि कोयला सबसे ज्यादा वो जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, ग्रीन हाउसेस का उत्सर्जन सबसे ज्यादा करते हैं। तो ये जिम्मेदारी दी गई कि जितने भी हमारे विकसित और औद्योगिक रूप से सशक्त राष्ट्र हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिट करें। किस लेवल पे लाएं? सन 1990 में जो उत्सर्जन का स्तर था, उस जगह पर इस चीज को लाएं। इसके बाद 2001 में एक माराकेश करके एक जगह है मोरक्को में, वहां पर भी इस पे पूरा विश्व समुदाय इकट्ठा हुआ और यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के उसमें एक कमेटीज वगैरह बनी और उन्होंने कहा कि साहब ऐसी कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए कि ये जो ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है, इसको कैसे कम किया जाए। तो कौन कौन सी सुविधाएं देशों को दी जाए, क्योंकि बहुत सारे देशों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होती जिसको हम क्लीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिससे कि वो इस कार्बन के उत्सर्जन को कम करें या ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर जाएं। जैसे आप सोलर एनर्जी की बात करें, हाइडल पावर की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, यानी कोयला आधारित न होकर के अगर ऊर्जा का उत्पादन हमें करना है तो उसके लिए वो कौन से विकल्प हो सकते हैं, वैकल्पिक साधन हो सकते हैं, उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो उन देशों को दें जो अभी विकास के क्रम पर पीछे हैं, यानी विकासशील देश हैं। तो विकसित देश अपनी टेक्नोलॉजी को विकासशील देशों को दे, जिससे कि विकासशील देश की ऊर्जा के उन संसाधनों का उपयोग कम से कम करे जिसके कारण सबसे ज्यादा प्रदूषण भार होता है। और न केवल इतना, बल्कि उस पर एनफोर्समेंट भी करे, क्योंकि आपको मालूम है सारे राष्ट्र अपने आप में संप्रभु हैं, दे आर ऑल सॉवरेन इन देयर नेचर। जब सॉवरेन कंट्री के ऊपर किसी दूसरे कंट्री का दबाव नहीं होता, लेकिन एक परस्यूएसिव फोर्स होता है जो सबको कहता है कि आप सब इस कागज पे हस्ताक्षर कीजिए। तो इंडिया इज ऑल्सो वन सच सिग्नेटरी ऑफ सच माराकेश कन्वेंशन। तो वैसे ही जितने भी प्रोटोकॉल हुए हैं, जितने भी कन्वेंशन हुए हैं, इन सब में भारत की सक्रिय भूमिका रही है और भारत ने एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा तवज्जो दी है। नेक्स्ट लीजिए। एमिशन ट्रेडिंग, ये भी एक चीज है कि अगर कोई विकसित देश है, वो कहता है कि साहब मैं तो इतना ही उत्सर्जन करूंगा, लेकिन विकासशील देश जो है अपने जंगल को बचा के रखे, ताकि मेरे देश से निकलने वाले कार्बन का अवशोषण उसके देश के जंगल करें, और हमें उस जंगल की जरूरत है तो हम कहेंगे भाई इसके एवज में हमें जो राशि मिलती थी वो राशि की भरपाई विकसित देश करे। आप समझे मेरी बात? ये इसको बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग, यानी मैं कार्बन का उत्सर्जन करूंगा क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हूं,
मैं विकसित राष्ट्र हूं और ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डाल रहा हूं, वो आप अपने जंगल बचाइए ताकि उस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण उन गरीब देशों के जंगलों में हो। और उन गरीब देशों को कहा जाएगा कि आप अपने जंगल नहीं काटेंगे, उसकी भरपाई हम आके आपको करेंगे। तो उसको बोलते हैं एमिशन की ट्रेडिंग करना, यानी मेरे देश से जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है उसकी भरपाई आपके देश के जंगल करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि जंगल के अलावा, वनस्पतियों के अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकें। और ये हमारे जो पेड़ पौधे हैं ये इतने बढ़िया होते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके आपको उपयोगी चीजें बना के देते हैं। ये आपको टिम्बर देते हैं, आपको जलाऊ लकड़ी देते हैं, आपको ये फाइबर देते हैं, आपको खाने की चीजें देते हैं, इतने सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि आपको औषधि देते हैं, तमाम उनके उपयोग हैं। और ये सारे के सारे इस कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोगी चीजों में परिवर्तित करने की बहुत बड़ी मशीनरी है जो प्रकृति प्रदत्त है। नेक्स्ट लीजिएगा। इसके बाद 2009 में कोपेनहेगन में, आपको मालूम है डेनमार्क में, ये एक ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात की। कई गरीब देशों ने कहा कि साहब अब इतना ज्यादा जंगल हम बचा नहीं सकेंगे, या जंगल का वनावरण अगर बढ़ाना है, फॉरेस्ट का कवरेज अगर बढ़ाना है तो हमें पैसों की जरूरत होगी। तो जो विकसित राष्ट्र है वो पैसे से हमारी मदद करे। तो पूरे विश्व में एक ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात की गई कि उन सारे इतना रुपए दिया जाए ताकि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो अडेप्ट हो जाए इन जो न्यू नॉर्मल है, यानी जो स्थितियां खराब होती जा रही हैं उस खराब स्थितियों से कैसा उसके अपने आप को अनुकूलित कर ले कि उसके हिसाब से चल सके। और आपको मालूम है कि चाइना, इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, ये सारे के सारे जो देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, यानी जो विकासशील देश हैं, इनमें बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। तो सारे देशों ने आगे बढ़ करके कहा कि हाँ, हम इसमें अपना सहयोग देंगे, यानी अपने वन आवरण में कटौती नहीं होने देंगे बल्कि वन आवरण का क्षेत्र बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे यहाँ से उत्सर्जित होने वाली और भी देशों से उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण हमारे जंगल कर सकें। पोलैंड की राजधानी वार्सा में कॉप 19 हुआ। कॉप यानी हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये इसमें इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की गई। या इस शब्द को जरा हम समझ लें, ये इंटेंडेड यानी आशयित, आप क्या आशय है आपका। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, राष्ट्रों को ये स्वाधीनता दी गई, स्वतंत्रता दी गई कि आप तय कर लें कि आपका सहयोग इस ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में कितना रहेगा। सारे देशों को कहा गया कि आप लोग अगली बैठक में जब आए तो आप तय करके बताएं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने में आपके देश का कितना सहयोग रहेगा। इसको हम कहते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, या शॉर्ट में उसको कहते हैं INDC। ये एक इंपॉर्टेंट वो था जिसमें कि राष्ट्रों से कहा गया था, थोपा नहीं गया था, उनसे कहा गया था कि आप स्वेच्छा से आए और बताएं कि इस ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को, इस क्लाइमेट चेंज को रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है और आप किस दूरी तक सहयोग दे सकते हैं। इसके बाद पेरिस कन्वेंशन हुआ, 196 देश इसमें शामिल हो गए। UNFCCC का शायद आपने नाम सुना होगा, ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज है। तो ये क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने देश थे वो सारे इसमें शामिल हुए, सब लोगों ने उसमें हस्ताक्षर किया, बहुतेरे देशों ने हस्ताक्षर किया और सब इस बात से तय कर लिया कि हमको हमारा सहयोग क्या रहेगा उसमें, क्योंकि पूरी विश्व की समस्या कोई एक देश की नहीं है, इस समस्या वैश्विक है। तो वैश्विक समस्या के समाधान भी वैश्विक स्तर पर ही खोजे जाने होंगे। इसीलिए सारी पार्टीज यूनाइटेड नेशंस के बैनर तले इकट्ठी हुई और उन्होंने ये तय किया और एक निश्चित भी किया कि हम तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ने नहीं देंगे। और ये हम देखिए, प्रदूषण के एक जगह पे स्रोत है और एक जगह पे प्रदूषण जाके रुक जाता है, यानी प्रदूषण का अवशोषण हो जाता है। एक जगह प्रदूषण है और एक जगह अवशोषण है। जहां प्रदूषण का स्रोत है उसको हम अंग्रेजी में सोर्स बोलते हैं, और जहां पर जाकर के वो उसको कोई जज्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, उसको हम सिंक बोलते हैं। जैसे हमारे घरों में भी सिंक होता है, यानी जहां पर हम अपने पुराने बर्तन सब डाल देते हैं उसको हम सिंक कहते हैं।
तो वैसे ही हमारे जो जंगलात हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारे समुद्र हैं, ये सारे सिंक हैं, ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के स्थान हैं। सोर्स क्या है? इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल है, बहुत सारी चीजें जो धुआं उड़ा रही हैं, ये सारे के सारे सोर्स हैं। और सिंक कहाँ है? सिंक हमारे जंगल है, सिंक हमारे पानी है, समुद्र की पानी है, समुद्र के पानी भी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि हमको सोर्स को कम करना होगा, सिंक को हमको बढ़ाना होगा। दुर्भाग्य से ये हो रहा है कि हमारे सोर्स जो है ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर बढ़ते जा रहे हैं और सिंक हमारे रिड्यूस होते जा रहे हैं, यानी हमारे जंगल कम होते जा रहे हैं और इधर इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, यानी स्रोत जो प्रदूषणकारी स्रोत हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको हमको ये ध्यान में रखते हुए अपने आगे की विकास यात्रा को तय करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा ऐसा विकास हो जो पर्याहितैषी हो, यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली विकास होगा तो उसे ही सही मायने में हम विकास कहेंगे। ऐसा नहीं कि आज ही हम सारा का सारा खनिज, सारा का सारा कोयला निकाल लें, सारा का सारा क्रूड ऑयल निकाल लें और हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी उनके उपयोग के लिए बची रहे ये संपदाएं, क्योंकि ये सब एग्जॉस्टिव रिसोर्सेस हैं, ये विनाशी हैं। ये एक बार उपयोग में लाई गई तो फिर ये खत्म हो जाती है, ये फिर से इसका पुनरुत्पादन नहीं हो सकता। जैसे जंगल का पुनरुत्पादन संभव है, लेकिन कोयला निकल गया तो फिर वापस कोयला आपको नहीं मिल पाएगा। पेट्रोल डीजल अगर एक बार खत्म हो गए, तेल के कुएं बंद हो गए, खत्म हो गया, ड्राई हो गया, फिर से आप उसको उत्पादित नहीं कर पाएंगे। तो ये इसीलिए इनको कहते हैं कि एग्जॉस्टेबल, यानी जो एग्जॉस्ट हो जाता है वैसे वाले रिसोर्सेस हैं, और हमें उन रिसोर्सेस पे जाना होगा जो इनएग्जॉस्टेबल है, जो अविनाशी है। यानी आप सोलर एनर्जी की बात कीजिए, सूर्य हमेशा उगता रहेगा और हमेशा आपको सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। विंड एनर्जी है, हाइडल पावर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप ऊर्जा का उत्पादन आप कर सकेंगे। और कोयले पे आधारित हमारी जो अर्थव्यवस्था है, कोयले पे आधारित पूरा हमारा सिस्टम है, उसको हमको कम से कम करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट लीजिएगा। ये मैंने आपको तमाम बताया। एक शब्द बहुत आजकल बड़ा प्रचलन में है जिसको आपको समझने की जरूरत है, वो कहलाता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब इस शब्द के अर्थ को आप समझ लीजिए। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का अर्थ यह है कि कार्बन जो प्रकृति में आया कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, इसे कैसे उपयोगी चीज में परिवर्तित किया जाए। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म में है, जो गैस के रूप में है, उसको कैसे सॉलिडिफाई किया जाए और कैसे वो हमारे उपयोग में आ सके। तो आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा उपयोग प्रकाश संश्लेषण में है, फोटोसिंथेसिस में है, और ये हमारे प्लांट बॉडी जो भी क्लोरोफिल युक्त हमारे प्लांट्स हैं, जिसमें कि क्लोरोफिल है, सूरज की रोशनी में जमीन से पानी सोखती है। आप लोगों ने अपने स्कूल डेज में पढ़ा होगा 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + C6 लाइक ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता, फिर आगे चल के स्टार्च बन करके डिपॉजिट हो जाता। यानी हमने क्या किया कि जो प्रदूषणकारी कार्बन डाइऑक्साइड था उसको हमने उपयोगी स्टार्च में, उपयोगी फाइबर में, उपयोगी मेडिसिन में, उपयोगी प्लांट बेस्ड बहुत सारी चीजें जो होती हैं उसमें हमने कन्वर्ट कर लिया। और ये काम केवल हमारे पेड़ पौधे ही कर पाए। इस बात को हमको जरा समझना होगा। दिस इज कॉल्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो एफॉरेस्टेशन, ट्रांसफॉर्मिंग लैंड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। आप क्या कर रहे हैं? अब जमीन का उपयोग इंडस्ट्री में नहीं कर रहे हैं, सोर्स नहीं बना रहे हैं। Now if you are expanding the forest area, which is called the afforestation or reforestation, पुराना जंगल था बर्बाद हो गया, नए सिरे से आपने जंगल खड़ा करने का प्रयास किया, that is called reforestation। और नए क्षेत्र में अगर आपने नए जंगल बनाए उसको हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन करके आप उस पहले जो सोर्स था उसको आपने सिंक में तब्दील किया। तो सोर्स से सिंक तक की यात्रा आपको देखनी पड़ेगी। सोर्स कम हो, सिंक का साइज बढ़े, तभी हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो कम होगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो कम होगा। स्प्रेड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड मूव टुवर्ड्स लो कार्बन वर्ल्ड। हमारा जो कार्बन का फुटप्रिंट है, यानी कार्बन को उपयोग करने की हमारी जो दैनंदिनी के जीवन में उपयोग करते हैं उसको हमें कम करना होगा। यानी अगर आप पैदल चल सकते हैं तो वहां आप मोटरसाइकिल स्कूटर लेके ना जाएं, क्योंकि मोटरसाइकिल स्कूटर
फॉसिल फ्यूल पे चल रहा है, पेट्रोल पे चल रहा है, डीजल पे चल रही है गाड़ियां, इस पे हमें अपने स्तर पे रोक लगानी होगी। और ये बात आपके मार्फत बच्चों तक पहुंचनी चाहिए कि इन सब चीजें, अब थर्मल पावर स्टेशन से बिजली बन रही है, प्रयास ये करें कि घर में हम सोलर पावर का उपयोग करें, जिससे कि बिजली की खपत कम से कम थर्मल पावर वाली बिजली का उपयोग ना हो, सोलर पावर वाली बिजली का उपयोग हो। यानी ऊर्जा के जो वैकल्पिक साधन हैं, ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, उसकी तरफ अगर हम अपने बच्चों का ध्यान आकर्षित करेंगे तो संभव है कि आने वाले समय में जितने सारे थर्मल पावर स्टेशन खुले हैं, इतने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब इतनी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कोयले का खनन कम होगा, यानी कोयला हमारे लिए बचा रहेगा आने वाली पीढ़ियों के उपयोग के लिए। और ये संभव है कि आने वाली पीढ़ी उस कोयले को, इसको ये मानते हुए कि ये बहुत ही ऊर्जा का सबसे खराब संसाधन है, उसको छुए भी नहीं। ये समय वो दूर नहीं है, नए नए प्रयोग हो रहे हैं कि कैसे हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाए जो सबसे क्लीन होगा, उस दिशा में काम हो रहा है। लेकिन कोयला जो है ये सबसे बहुत ही खराब सोर्स है एनर्जी का। लेकिन आज हमारे पास उससे कोई ज्यादा विकल्प हमारे पास बचे नहीं है। कई जगह पे न्यूक्लियर पावर से भी हो रहा है, कई देश इसमें आगे हैं जिन्होंने कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स नहीं बनाए हैं, वो न्यूक्लियर बेस्ड बना रहे हैं, जहां पर नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके हम विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। देखिए, दो चीजें हमको समझना पड़ेगा क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये तो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज को कोई नहीं रोक सकता, ये परिवर्तन आएगा। आने का कारण मैंने आपको शुरू में बता दिया कि हमारी जो निर्भरता है वो हमारे जीवाश्म ईंधन के ऊपर, फॉसिल फ्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब फॉसिल फ्यूल के ऊपर आपकी निर्भरता बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, बड़ी आबादी के लिए बड़ी जमीन की जरूरत है, बसाहट के लिए, उद्योगों के लिए जमीन की जरूरत है, कल कारखानों के लिए जरूरत है, बांध बनाने हैं, रेलवे लाइन डालना है, रोड बनानी है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने हैं, तो ये जमीन जा रही है। और ये जमीन किसकी जा रही है? ये हो सकता है जमीन खेती की जमीन जा रही हो, या ये हो सकता है जंगल की जमीन जा रही हो। जब खेती और जंगल, जो कि वानस्पतिक आवरण देता है, जो कि हमारा सिंक है, वो सिंक कम हो रहा है, सोर्स बढ़ रहे हैं, सिंक कम हो रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे समय में हमारे पास केवल दो तरीके हैं जिससे हम क्लाइमेट चेंज की रफ्तार को कम कर सकते हैं। फिर से इस बात को मैं आपको बताऊं, क्लाइमेट चेंज को रोका नहीं जा सकता, केवल उसकी रफ्तार को मंद किया जा सकता है। अब मंद करने का तरीका क्या होगा? तो देयर आर टू मेथड्स, वन इज एडेप्टिव स्ट्रैटेजी एंड सेकंड इज मिटिगेटिंग स्ट्रैटेजी। यानी कैसे आप अपने आप की, अपनी जीवन शैली को कैसे उसके लिए अनुकूलित कर लें, और दूसरा कि कैसे आप इसका शमन करें। शमन करने के क्या तरीके होंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड भारत के संदर्भ में दूं, जिससे कि आप इसको अप्रिशिएट करें। आपको मालूम है कि हमारे सरफेस एरिया, पूरे पूरे भूभाग का, पूरे विश्व के भूभाग का 2.4% भूभाग में भारत है, लेकिन इसमें आबादी 17.5% है पूरे विश्व की। यानी विश्व की भूभाग का केवल 2.4% है भारत में, लेकिन आबादी उसके ऊपर जो निर्भर है वो 17.5% है। यानी पर कैपिटा जो लैंड है हमारे पास काफी कम है अन्य देशों की तुलना में, यानी आबादी बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा 30% हमारे देश में गरीब, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ग्लोबल पुअर, दुनिया भर के जो गरीब हैं उसका 30% आपको भारत में मिल रहा है। 24% of the global population have no access to electricity, ये भी हमारे देश में है। 30% of the global population relies on solid biomass for cooking। आज भी आप चले जाइए किसी भी इंटीरियर में, आपको सिर में बोझ लेकर के महिलाएं जंगल से लकड़ी लाके दिखती। इसका मतलब है अभी भी हमारे पास, भले हमने उज्ज्वला योजना शुरू की, बहुत सारी योजनाएं सरकारी शुरू की ताकि जंगलों के ऊपर दबाव कम हो, जंगलों के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो, प्रयास हमारे जारी हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये चीजें खत्म ही हो गई। जंगल की पुनरुत्पादन की क्षमता से ज्यादा जंगल से हमने निकासी की, तो बताइए कितने दिन जंगल चल पाएंगे? यानी उसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी से ज्यादा अगर उसको आपने एक्सप्लॉइट किया तो आपका रिसोर्स बेस कम होता जाएगा। यदि बैंक में आपने 100 रुपए रखा है
और उसमें से अगर आप हर दिन 10 रुपए निकाल रहे हैं और 2 रुपए डाल रहे हैं, तो हर बार 8 रुपए का घाटा हो रहा है ना आपका। आपका कैपिटल कब तक बचा रहेगा? तो वैसे ही आपको देखना पड़ेगा, ये जो प्राकृतिक संसाधन आपके पास हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज विच यू आर एंडोर्ड विथ, दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग डिप्लीटेड डे आफ्टर डे आफ्टर डे। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। 30% of the global population relies on solid biomass for cooking world over. It's not only confined to India. पूरे विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां पर बायोमास के ऊपर ही निर्भरता है। चाहे गोबर का उपयोग, गोबर का बेस्ट उपयोग होता है एज ए मैन्योर आप खेती में करें, लेकिन उसको हम कंडा बना के जला देते हैं। तो 92 मिलियन हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। आज की तारीख में 92 मिलियन लोग यानी 9.2 करोड़ लोगों को सुरक्षित पानी उपलब्ध नहीं है। ये सारी बैकग्राउंड में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके जो क्लाइमेट चेंज है या पर्यावरणीय इससे जो क्षति पहुंच रही है उसको समझने के लिए जानकारी का होना जरूरी है। नेक्स्ट ले लीजिए। देखिए, हिंदुस्तान ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, तब हम इसका श्रेय जाता है श्रीमती इंदिरा गांधी को, जो हमारी प्रधानमंत्री थी। उनकी दूरदृष्टि को इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि उन्होंने भारत इसमें भाग लिया और भारत ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कमिट किया कि पर्यावरण को लेकर के हम चिंतित हैं और हमने अपने देश के कानूनों में ये तब्दीलियां लाएंगे कि हमारे जंगल सुरक्षित रहें, पर्यावरण संरक्षित रहे, इस दिशा में हमारे सारे काम होंगे। तो इस कड़ी में 1972 के बाद 1980 में हमने वन संरक्षण अधिनियम नाम का कानून लाया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। सबसे पहले इसके पहले एक चीज और हुई, वो ये हुई कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट टॉक्स अबाउट 3 लिस्ट। आप लोगों में जो पॉलिटिकल साइंस के होंगे उन्हें पता होगा कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उन्होंने केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट बनाए हैं जिसमें विषयों को लगाया है कि किस विषयों पे केंद्र सरकार कानून बना सकता है, नीति बना सकता है, नियमावली बना सकता है। वो सारी चीजें केंद्र के दायरे में आती हैं। जैसे रुपए पैसे का हिसाब है, मौद्रिक नीति भारत सरकार ही बना सकती, राज्य सरकार नहीं बना सकती। वैसे राज्य के लिए कानून व्यवस्था है, राज्य सरकार बनाएगी, उसमें केंद्र का दखल नहीं होगा क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। 1976 के पहले ये जो हमारा फॉरेस्ट था, जो वन था, ये वन हमारा राज्य का विषय था। इससे हुआ क्या, राज्य सरकारें जो उनकी तात्कालिक आवश्यकता थी, कहीं पट्टे देना है, कहीं बसाहट करनी है, कहीं कुछ करना है, तो उन्होंने हमने पट्टे देने शुरू किए। इससे जंगल के घटने की रफ्तार काफी तेज हो गई। जब ये महसूस हुआ कि जंगल हमारे तेजी से कम हो रहे हैं क्योंकि हम गैर वानिकी प्रयोजन में वन क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस लाइक डैम बनाना, माइनिंग एक्टिविटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सबके लिए। तो हमें लगा कि ये समय आ गया है कि इसको राज्य सूची से वन विषय को हटा के समवर्ती सूची में डाला जाए, जिसमें कि केंद्र शासन भी की सहमति से ही राज्य शासन कुछ कर सकती है। तो 1976 में समवर्ती सूची का विषय बन गया वन। उसके बाद वो एक इनेबलिंग प्रोविजन था। उस इनेबलिंग प्रोविजन के कारण 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया, जिसमें कोई भी वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन करना है तो बगैर भारत सरकार की अनुमति के यह संभव नहीं था। यानी हम जंगलों के संरक्षण के लिए इतने चिंतित होने लगे क्योंकि जंगल हमें मालूम था कि ये सबसे बड़ा सिंक है, यानी जितनी ग्रीन हाउस गैसेस है उसका एब्जॉर्प्शन वहां होगा, और जितनी जैव विविधता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जितने हमारे वाइल्ड लाइफ हैं, जितने हमारे वेटलैंड्स हैं, ज्यादातर जंगल के अंदर है। उन्हें संरक्षित रखना, उन्हें सुरक्षित रखना, उनका परिरक्षण करना, ये सारी की सारी नैतिक जवाबदारी हमें महसूस हुई और इसके लिए कानून बनाए गए ताकि वो नैतिक जवाबदारी या विधिक जवाबदारी में तब्दील हो जाए। तो इसके बाद हमारे भारत के संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहलाता है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसमें उन्होंने 42वें संविधान संशोधन से एक अनुच्छेद को जोड़ा गया जिसका नाम है आर्टिकल 48A यानी 48 क,
इस अनुच्छेद में, इस आर्टिकल में कहा गया कि द स्टेट शैल एंडिवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। यानी ये कमिटमेंट, ये बोला गया कि राज्य ये देखेंगे कि वो अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे, सुधार लाएंगे उसमें, और अपने वन और वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में काम करेंगे। यानी ये चिंता 1976 में भारत के संविधान में संशोधन ला करके ये भारत के नागरिकों के सामने रखा गया। इसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, इसके बाद हमने अपनी नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाई, मतलब वाटर एक्ट आया। वाटर एक्ट आने के बाद एयर एक्ट आया कि जलों का को प्रदूषण से कैसे बचाया जाए, वायुमंडल का प्रदूषण, वायु के प्रदूषण के कैसे रोका जाए, और इन सबको जोड़ते हुए हमने 1984 में एनवायरनमेंट एक्ट लाया, नेशनल एनवायरनमेंट एक्ट आया। इसके बाद उसी में हमने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई। ये सारी चीजें हमने अब ध्यान दिया कि डेवलपमेंट होना चाहिए विदाउट डिस्ट्रक्शन, यानी ऐसा विकास जो कि सच्चे अर्थों में विकास हो, विनाश न हो। इसके बाद नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की बात की। हमने एक्शन प्लान बनाया कि क्लाइमेट चेंज की गति को रोकने के लिए क्या करने चाहिए। तो पूरे भारत में 8 नेशनल मिशंस बनाए गए फॉर मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, यानी ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके शमन के लिए और इसके लिए अपने आप को कैसे अनुकूलित करें, यानी बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए समय में अपने आप को कैसे ढालें कि हमारे ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव कम से कम पड़े, न्यूनतम प्रभाव पड़े। इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज तैयार किया गया। इसमें 8 नेशनल मिशंस थे और वो मिशंस अलग अलग हैं। मैं अभी आप थोड़ी देर में आपको बताता हूं, 5 मिनट में। मिटिगेशन स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, एक सप्लाई साइड होता है, एक डिमांड साइड होता है। जब हम क्लीन एंड एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि साहब ये साफ सुथरा ये एनर्जी सिस्टम होना चाहिए, ऊर्जा तंत्र होना चाहिए, तो सप्लाई साइड में हम कहते हैं ग्रेटर यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी यानी ऐसी ऊर्जा जो कि रिन्यू होते रहे, जैसे सोलर है, विंड पावर है, बायोमास है, हाइड्रो पावर है, कोयले से भी जलाना है तो कोयले को पहले क्लीन कर लीजिए। देयर आर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल जो कि कोयले में से जो जितनी खराब चीजें हैं उसको काफी हद तक वो कम कर देती हैं, उसको कहते हैं क्लीन कोल। न्यूक्लियर पावर, इस दिशा में सोचा जाए कि हमको ऊर्जा के बेहतरीन उपयोग, बहुत बेहतरीन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, डिमांड साइड में आप क्या करोगे? तो एफिशिएंटली इस ऊर्जा का बेहतरीन उपयोग करना है, यानी ऊर्जा के लिए ऐसे अप्लायंसेस का इस्तेमाल करना जो ऊर्जा की खपत कम से कम करता है, क्योंकि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। ये आपने सुना होगा, ये ऊर्जा की बचत ही, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, यानी जितनी आप ऊर्जा बचाएंगे उतना आपको उत्पादन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना खपत कम करेंगे उतनी बचत होगी, वही उसका उत्पादन मान लीजिए। तो इसका डिमांड साइड में आपको एफिशिएंट, आप देख रहे हैं आजकल जो एसी वगैरह आ रहे हैं, 5 स्टार रेटेड एसी आ रहे हैं या स्टार रेटिंग हो रही है, क्योंकि एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी नाम की एक संस्था है जो स्टार रेटिंग देती है, यानी आपकी ऊर्जा। जैसे अब देख रहे हैं हम सीएफएल के बल्ब लगा रहे हैं, बड़े बड़े ट्यूबलाइट नहीं लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो 9 वाट में काम कर रही है। जो 40 वाट का ट्यूबलाइट था, अब उतनी ही रोशनी आपको 9 वाट में मिल रही है, तो आपने बहुत बड़ी ऊर्जा बचा ली। तो ये जो तरीके हैं, एफिशिएंटली हम यूज कर रहे हैं एनर्जी का, इसमें भी बहुत सारा उपयोग हुआ है। इसके लिए भी सरकार ने बहुत सारे इंसेंटिव दिए हैं, बहुत सारी सब्सिडी दी है कि ताकि आप ऊर्जा का उपयोग कम से कम करें। फिर डेवलपिंग क्लीन क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन सेंटर्स, हम नए शहर, स्मार्ट सिटी वगैरह बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये स्मार्ट सिटी ऐसे होंगे जिसमें आपने देखा होगा लाइट जलती है तो सुबह तक जल रही है और सुबह 7 बजे 8 बजे तक भी लाइट बुझाया नहीं जाता, तो उसमें फोटोवोल्टेइक तरीका लगा करके कि ठीक जैसे ही अंधेरा होगा लाइट अपने आप चालू हो जाएगी और सुबह जैसे ही उजाला होगा लाइट अपने आप बुझ जाएगी, किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने की हैं इसमें स्मार्ट सिटी में, जिससे कि ऊर्जा का उपयोग कम से कम हो। वैसी अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत के अंतर्गत 500 शहरों को इसके दायरे में लाया गया है। वेस्ट टू एनर्जी, आप देख रहे हैं बहुत सारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है हमारे शहरों में, 500-600 टन एक दिन में हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं शहरों में, और उसको ले जाके हम कहीं डंप कर देते हैं। रायपुर शहर में मुझे मालूम है खारून नदी के बाजू में हम डंप करते थे। अब आप बताइए, खारून नदी का पानी जिससे पूरे रायपुर को वाटर सप्लाई होती है, अगर आप कचरा वहां डंप करेंगे,
बारिश के दिन में वो कचरे से गंदा पानी निकल के ढाल उसका खारून नदी की तरफ है, तो ये पूरा गंदगी खारून नदी में मिलेगा कि नहीं? और खारून नदी में मिलेगा तो ये पानी को आपको ट्रीटमेंट कराने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग वो पानी पे विश्वास नहीं करते और पानी की बोतलें लेकर के हम पी रहे हैं। क्यों? इसका मतलब ये है कि वेस्ट को कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करना, वेस्ट का डिस्पोजल कैसे सेफ हो, कैसे सुरक्षित इस तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट का निपटान हो, इसके लिए हमको, और उसको कैसे ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सके, उसको खाद में कैसे तब्दील किया जाए, या उसको कैसे उससे 6 मेगावाट का 4 मेगावाट का पावर प्लांट बनाया जा सकता है, क्योंकि इनकी अपनी कैलोरीफिक वैल्यू है। इनको जलाएंगे तो कैलोरी इसमें एनर्जी बनेगी और इस एनर्जी से आप बिजली पैदा कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह प्रयोग हुए हैं और काफी अच्छे काम हो रहे हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्लीन इंडिया मिशन के काम चल रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी जो हमारे ठोस अपशिष्ट निकल रहे हैं शहरों से, इसके अलावा एक और खतरनाक अपशिष्ट निकलता है जिसको हम कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, यानी हमारे अस्पतालों से जो चीजें निकल रही हैं, कचरा निकल रहा है जिसमें ह्यूमन ऑर्गन्स भी हैं, जिसमें खून है, सिरिंज है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत खतरनाक हैं। यदि वो बेचारे जो रैक पिकर्स होते हैं, जो कचरा बीनने जाते हैं, उनके पैरों में अगर वो चुभ जाए तो हो सकता है किसी को एड्स हो जाए, क्योंकि वो नीडल वहां पर पड़ी हुई है। बहुत सारी ऐसी बायो मेडिकल वेस्ट है। इन सबका सुरक्षित निपटान भी होना बहुत बड़ी जरूरत है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट है, ये तमाम चीजें करने की जरूरत है। क्लीन इंडिया मिशन हमने शुरू किया, आपको मालूम है, स्वच्छ भारत अभियान और तमाम चीजें हम कर रहे हैं। वो ओपन डेफिकेशन फ्री हमने अपने बहुत सारे गांवों को बना दिया कि गांव में शौचालय रखें, क्योंकि ये बहुत सारे स्रोत हैं बहुत सारी बीमारियों के। तो उसके लिए दिशा में काम हो रहा है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो रहा है। सागरमाला प्रोजेक्ट, समुद्रों को कैसे सब हमारे जो पोर्ट है उनको कैसे जोड़ा जाए, भारतमाला प्रोजेक्ट, सड़कों से कैसे जोड़ा जाए। तो ये बहुत सारी स्कीम भारत सरकार की इस दिशा में चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, हम बोल रहे हैं कि साहब पेट्रोल और डीजल के कारण जो है पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो कैसे हम धीरे से इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ क्यों ना आ जाए, हाइब्रिड व्हीकल बनाए, गैस से चलने वाला, गैस में जो सीएनजी वगैरह चलता है वो बहुत क्लीन फ्यूल है, वो पेट्रोल और डीजल की तुलना में उसमें धुआं काफी कम निकलता है और बहुत एफिशिएंटली बर्न होता है, यानी उसमें से छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल्स नहीं निकलते हैं, उसका स्मोक जो है स्मोकलेस दिखता है, उसमें धुआं नहीं निकलता। वैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ये भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन के ऊपर आधारित नहीं है, ये बैटरी पे आधारित है। दैट नेशनल पॉलिसी एंड बायोफ्यूल, बायोफ्यूल को लेकर के भी आपने देखा होगा, हम बहुत सारी चीजों से ईंधन बनाने की बात कर रहे हैं, डीजल बनाने की बात कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों वो स्पीशीज क्या है वो जिससे हम वो बना रहे हैं, अब नहीं बाड़ी से मिलेगा, अब तेल नहीं आएगा खाड़ी से, अब मिलेगा बाड़ी से वाला स्पीशीज क्या है, जेट्रोफा। रतन ज्योति। हाँ, रतन जो, रतन जो तो जेट्रोफा को हमने बहुत तेजी से फैलाने की कोशिश की। फिर हमने बायोफ्यूल में इथेनॉल की बात कर रहे हैं कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग अगर हम पेट्रोल से करते हैं तो आपकी पेट्रोल की रिक्वायरमेंट आपकी कम हो जाएगी 10%। अब आजकल बढ़ा के भारत सरकार ने 20% तक ब्लेंडिंग करने की यानी मिलावट की अनुमति दे रखी है। कई जगह पे प्लेन उससे उड़ने शुरू हो गए हैं बायोडीजल से। तो ये समझना होगा कि इस दिशा में भी काफी कुछ काम हो रहा है। फिर एक ग्रीन इंडिया मिशन है, यानी भारत को ग्रीन करने के लिए कितना ज्यादा एफॉरेस्टेशन किया जाए, कितना ज्यादा हम वनीकरण का काम हाथ में लें जिससे कि ये सुधरे। देन अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम करने के लिए कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग स्टेशन, हर बड़े बड़े शहरों में आपने देखना कि वहां पर टावर लगे हुए हैं जिसमें बताते हैं कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन का कितना है हवा में, 2.5 माइक्रोन का कितना है, कितना होना चाहिए, कितना ज्यादा है या कम है वो बताता है। हवा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कितने हैं, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना है, ये तमाम जानकारी और लगातार निरंतर आती है। कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, उद्योगों में हर उद्योग वाला अपना अलग अलग अपशिष्ट को, जो पानी निकलता है उसमें से गंदा पानी, उसको ट्रीट नहीं कर रहा है, तो कहा गया कि इंडस्ट्रियल पार्क जो है या इंडस्ट्रियल क्लस्टर है उससे निकलने वाले सारे पानी को एक जगह लाके उसे उपचारित कर लिया जाए, उसका ट्रीटमेंट हो जाए और उसके बाद उसको नदी नालों में छोड़ा जाए। फ्लाई ऐश, आपको मालूम है थर्मल पावर स्टेशन में कोयला जलता है और कोयला जलने के कारण राख निकलती है, इस राख का निष्पादन, इसका भी निपटान कैसे सुरक्षित तरीके से हो, उसको कैसे उपयोगी चीजों में, जैसे आप फ्लाई ऐश ब्रिक वगैरह देखते हैं सड़क बनाने में काम आ रहा है, उसका कैसे उपयोग किया जाए।
जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी आ गई। कई जगहों से कहा गया कि इसमें से आप बिल्कुल लिक्विड आप बाहर निकलने नहीं देंगे, उसका उपयोग वहीं करेंगे। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बना। ऐसे बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं जिससे कि क्लाइमेट चेंज पे इसका असर कम से कम हो। नेक्स्ट लीजिएगा, बस एक दो स्लाइड हो तो। एडाप्टेशन, ये मैंने मिटिगेशन एडाप्टेशन स्ट्रैटेजी, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की हम बात करें, ऐसा एग्रीकल्चर हो जिसमें कि हमारी निर्भरता रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर, रासायनिक खादों पे न हो, हम जैविक खाद की दिशा में आगे बढ़ें। क्योंकि आपको मालूम है रासायनिक खाद की कितनी नुकसानी है, या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के स्प्रे करने की जरूरत ना पड़े, बायो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, ऐसा पेस्टिसाइड जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है लेकिन कीट पतंगों से हमारे फसलों को नुकसान न पहुंचा पाए, इसकी दिशा में। देन मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर। आपको मालूम है हार्टिकल्चर का एरिया हम लगातार विस्तारित करते जा रहे हैं ताकि फल और सब्जियां जो है, जो कि विटामिन और मिनरल्स के बहुत बड़े स्रोत हैं, जो हमारे अंदर में जो हंगर है, जिसको हम कहते हैं हिडन हंगर, यदि आप केवल लोगों को चावल और दाल ही खिलाते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। उसे संतुलित आहार मिलना चाहिए, उसमें विटामिन होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अभी हमारे ज़्यादातर आहार जो हम दे रहे हैं उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। चावल बांट दिया हमने, चना बांट दिया, तो केवल आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। बाकी जो विटामिन की रिक्वायरमेंट है और बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो सब आपको तभी मिलेगा जब आप सब्जियां देंगे, जब आप आयरन डेफिशिएंसीज को दूर करने के प्रयास करेंगे, जो रक्त अल्पता है या जो कुपोषण है उसको दूर करने के लिए इन सब की जरूरत है। तो आपको मालूम है हमारे यहाँ अभी बाड़ी योजना चल रही है छत्तीसगढ़ में, वो उसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। देन परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग की दिशा में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कि हर खेत तक पानी पहुंचे और पानी का सबसे ज्यादा उपयोग हो। तो वो सारी बातें आप सुनते आ रहे हैं। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, हमारे कृषि विश्वविद्यालय नए नए प्रयोग करके नई नई प्रजातियां निकाल रहे हैं, हाइब्रिड प्रजातियां निकाल रहे हैं। कईयों में बायो फोर्टिफिकेशन हो रहा है, यानी राइस में जिंक की मात्रा कहीं कम है तो जिंक को कैसे उसमें उत्पादित किया जाए, उस दिशा में काम चल रहा है ताकि वो प्रजातियों को लोगों तक लाएं, यानी लैब टू लैंड ट्रांसफर हो, लैब में जो तैयार हो उसको जमीन तक कैसे पहुंचाएं। ये विश्वविद्यालय और किसान के बीच में सेतु का काम करता है हमारा एक्सटेंशन नेटवर्क, यानी हमारे जो विस्तार सेवाएं हैं, कृषि विस्तार सेवाएं, ये इसको कैसे सशक्त किया जाए ताकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकलने वाली चीज हमारे किसानों तक पहुंचे। पानी का उपयोग बेहतर कैसे हो, इसलिए हमारे नेशनल वाटर मिशन बने हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटरशेड डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, यानी जिसको जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं उस दिशा में काम है। गंगा एक्शन प्लान आपने नाम सुना है। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम, हमारे नदियों को कैसे संरक्षित किया जाए उसके दिशा में काफी काम। यानी कुल जमा, मेरे पास समय खत्म हो गया, वैसे मेरे स्लाइड्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। यदि हमें क्लाइमेट चेंज की रफ्तार को थोड़ा धीमे करना है, देखिए मैंने फिर आपसे कहूंगा इसको बदला नहीं जा सकता पूरी तरह, उसकी रफ्तार को जरा धीमे किया जा सकता है और इसके लिए हमें थोड़ा सा शिक्षित होना पड़ेगा। वी नीड टू बी एजुकेटेड। एनवायरमेंटल एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जो आपके मार्फत बच्चों तक जाना चाहिए, क्योंकि यही कल की भावी पीढ़ी है, भावी नागरिक है। इनको ही अपने प्राकृतिक संसाधनों का कैसा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना है, हाउ टू यूज इट वाइजली, द नेचुरल रिसोर्सेज विच द मदर नेचर हैज एंडोड ऑन अस, उसको कैसे संभाल के चलना है, ये जिम्मेदारी हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है, जिसको तैयार करने का गुरुतर दायित्व आपके कंधों पर है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि इस मैसेज को यू नीड टू टेक अप टू द लास्ट माइल, जहां तक आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे जगहों पे आप लोग काम करते हैं, वहां तक समाज के बीच में, बच्चों से समाज तक जाने की बहुत जरूरत है। लेट अस नॉट कन्फाइन अवरसेल्फ टू ओनली टू स्टूडेंट्स। मेरा बार बार एक कहना है, पेरेंट्स टीचर की मीटिंग में सिर्फ उनके बच्चों की परफॉर्मेंस तक बात मत कीजिए, उनसे आप तमाम विषयों पे बात कीजिए एंड ग्रेजुअली ट्राई टू एजुकेट देम ऑन दोज इश्यूज अबाउट विच दे आर नोइंग लेस एंड लेस। तो आपकी बहुत बड़ी इसमें जिम्मेदारी है। So friends, my slides are here, you can take it at any time, number of slides are there. So if you want to ask any question, if you have any query, uh, please feel free to speak to me, please feel free to ask me that question right now, or else I'll give you my email ID so that you can
you can communicate with me through the mail. Thank you very much. Any question, please? Mute. Okay. Any question? If you have any doubts in your mind, it seems that all of you are very much tired. Sir, It should be the other way around, I suppose. I spoke for 1 hour continuously. I'm not sir, feeling tired. I think you don't have any query or any question. So thank you very much for listening to me so patiently, and I'll try to share my email ID with you all. If you have a pen and paper, इसमें लिखा नहीं जाता है जी नहीं मिल जाएगा हाँ तो I'm requesting आगे क्या यस कहाँ ये नीचे यहाँ अच्छा हाँ so this is my email ID, so feel free to write to me so that we can exchange our thoughts. Thank you very much.